नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसकी वजह से आज भी इस मामले को लेकर के कोई फैसला नहीं सुनाया गया और फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। वहीं दूसरी और सीबीआई ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति मामले का सूत्रधार यानी कि मेन मास्टरमाइंड बताया है। दरअसल सीबीआई की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील डीपी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तभी गिरफ्तार किया जब उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलने लगे। अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण भारत में शराब कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने यानी कि विजय नायर, अभिषेक बोनपल्ली और दिनेश अरोड़ा के माध्यम से 2021-22 की आबकारी नीति में बदलाव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं और अन्य लोक सेवकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि यह रिश्वत L1 लाइसेंस रखने वाले थोक विक्रेताओं के मुनाफा मार्जिन के बाद उन्हें वापस कर दी गई थी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान सीबीआई के वकील ने यह दावा किया। फिलहाल अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल वकील डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को सबूत मिल गए। उन्होंने कहा कि कई लोग सामने आने लगे जिनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एजेंसी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को गिरफ्तार किए बिना अपनी जांच पूरी नहीं कर सकती थी। वकील ने कहा कि सीबीआई के पास घोटाले में अरविंद केजरीवाल की प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित करने वाले सबूत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और भी क्या कुछ कहा है सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने, वो आप भी सुनिए। Submissions were twofold. Number one, we gave the direct involvement of Kejriwal sahab. Mr. Arvind Kejriwal, right from day one, it has now emerged that he was the main person who was controlling the entire excise policy. The entire fruits also of the entire excise policy, fruits I mean to say the bribes and everything included, were disbursed as per the wishes of Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal, it has also emerged, is solely responsible for influencing the entire policy vis-a-vis the officers or through his ministers. We also have now come across proof of his trying to, influence even the existing players through Punjab. Then he is also instrumental in influencing the Chief Minister of Punjab in not giving, or the government of Punjab not giving sanction or permission under 17A to prosecute some important officers of the state. Then we also came across that after his arrest, not only some of the officers came forward and gave 164 statement, it also emerged that a lot of people in Goa came forward to give statement against Mr. Kejriwal with regard to the spending of that money which had come to Goa, which is about 44 crores. How that money was to be spent, who spent the money and whose directions. It was Mr. Arvind Kejriwal who was solely responsible of how much money will be spent by which candidate, how much money will be spent in the canvassing, in election related expenses. We have also a statement where the candidate said that he categorically said कि आप इलेक्शन लड़िए, पैसे की चिंता मत करिए. So therefore, to say that there is a hearsay statement, everything that was said in the court today is based on actual oral and documentary evidence. Nothing is presumption in this case.
the case is as clear as it can get. We have also tried to tell the court that this man will influence the trial also, because there are a lot of witnesses which are either from his party or officers who will then again be influenced by them or under fear of Mr. Kejriwal and the party will not be able to depose freely. There is absolutely no other charge sheet. We have completed the investigation. We are ready to go for the trial, and if they cooperate, we will finish the trial in 6 months' time. वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजेंसी ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से उनसे पूछताछ नहीं की है, सिवाय उस समय के जब वो पुलिस रिमांड पर थे। बता दें कि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में उन्हें सीबीआई मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब आज उनकी नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का विरोध करना शुरू कर दिया। जोरदार बहस होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना होगा कि अदालत अपने फैसले में क्या चीजें कहती है। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि शराब घोटाला मामला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। शराब घोटाला मामले को लेकर के न सिर्फ इस वक्त दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, बल्कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी इस वक्त जेल में हैं। जहां सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो हवाला कांड में सलाखों के पीछे है, तो वहीं अगर बात हम मनीष सिसोदिया की करें तो उन पर भी शराब घोटाला मामले का आरोप लगा हुआ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से ये शराब नीति बनाई गई थी, नई शराब नीति 2021-22 में, वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि इस मामले में अब तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भी फ्रेम किया गया है और बाकायदा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी एक दोषी करार दिया है, क्योंकि इस पॉलिसी को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को ही रिप्रेजेंट किया गया था। और यहाँ पर अब तो कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट भी सीबीआई के हाथ लगे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर मिले हैं, जिसकी वजह से अब अरविंद केजरीवाल को मेन मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, मेन सूत्रधार कहा जा रहा है। इससे पहले जब ईडी ने भी अपनी चार्जशीट दी थी तब भी उन्होंने बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस शराब घोटाला मामले में कई बड़ी और कई अहम है, जिसकी वजह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन फौरन इसी मामले में सीबीआई के हाथ में भी सबूत लगते हैं, जिसके बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि बीच बीच में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से यह दावा किया जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो जेल में काफी ज्यादा खराब हो रही है और कल को अरविंद केजरीवाल के साथ सलाखों के पीछे कई सारी चीजें हो सकती हैं, और यहां तक कि उनकी हत्या की भी साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और इसके पीछे दिल्ली के एलजी, वीके सक्सेना और बीजेपी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो उनका यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन जो है वो किसी और के नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।